So business studies and management. Last class we had already discussed about what is the basic meaning of business and what you mean by activity. I think this is your first class, right? Last class तुम्हें online थी लोगे? Okay, but complete your first class today. Okay. So we had discussed about business and what do you mean by business? What are the different categories of business and what are the different types of activities? Business comes out of which activity? Okay. All these things we have discussed in the last class. तो आज ये सी डिस्कशन का और टिके आगू बढ़ेगा. Still conceptual रहेगा डिस्कशन का. क्योंकि टेक्स्ट बुक कोई भी टिके में पढ़े दिखा पूरा conceptual overview वाले चैप्टर नहीं है. So that you are clear about the whole chapter. ठीक है introduction. Then हमें bit by bit point wise will cover everything. But first of all let's get an overview idea about the chapter. तो सबसे पहले subject को एमिति भाବରେ पढ़ो so that you know what you are reading and you can implement your knowledge. There is no point in learning if you are not able to implement your knowledge. If your knowledge को implement नहीं कर पा रहे हो then there is no point in learning, isn't it? It's like having a gun but without bullet, or you have a loaded gun with bullet but you don't know how to shoot. गन है तुम्हारे पास, उसमें बुलेट भी है, सब कुछ है, but सामने दुश्मन आ गया and you are not able to shoot because you don't know how to shoot. तो फायदा क्या? It's about you. Show back. So education be like that only. Education, whatever knowledge you have, if you are not able to implement it in real life, then it's of no use. It's a complete waste. So यही भावर पढ़ो so that practically तब से लगो कामरे लगे करियो. ठीक है जी. So हमें से practical approach है पूरा overall कोटे discussion करेगा, detailed discussion कोटे, conceptual discussion करेगा about this chapter. Okay. So what is business? Who can tell me what is business? What was the definition? Business is a process. Business is a process. Why? Because it continues. You can never say that I am done with my business. I mean, business अपने आप जो करने करो, I won't manage. No. You have to manage all the time. You can put it on automation. But still you have to supervise. अभी automation क्या होता है? Automation means तुमने suppose softwares वगैरह लगा दिए, सब internal control system setup कर दिया, softwares वगैरह तुमने setup कर दिए, है ना? Automation का best example है ना? For example एक company के जो websites में तुम लोग जाते हो, तो वहाँ पे कभी देखा होगा एक आ जाता है hello if you have any query ask me, एक pop-up कभी देखा है? और उनके व्हाट्सएप नंबर पे अगर मैसेज करते हो तो फट से रिप्लाई आ जाता है कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, इफ यू वांट दिस देन प्रेस 1, इफ यू वांट दिस देन प्रेस 2, व्हाट्सएप पे देन अकॉर्डिंगली द नंबर यू प्रेस एंड दे विल रिप्लाई यू, दे विल आंसर योर क्वेरी. होता है कि नहीं होता है? कभी देखा है कि नहीं? सो इज देयर एनी ह्यूमन बीइंग सिटिंग ऑन द अदर साइड हु इज आंसरिंग, हु इज रिप्लाइंग यू? क्या लगता है कोई इंसान बैठ के रिप्लाई कर रहा है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड है, सॉफ्टवेयर चल रहा है सर. इट्स अ कंप्लीटली ऑटोमेटेड मैसेज. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सब कुछ रीड कर रहा है एंड वो तुम्हें रिप्लाई कर रहा है. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी काफी डेवलप हो चुका है, तो बिजनेस हाउसेस आर अप्लाइंग दैट. सो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन. कि तुमने सब सेटअप कर लिया, सॉफ्टवेयर वगैरह सेटअप कर दिया, सब कुछ कर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब का हेल्प लेके तुमने ह्यूमन इंटरवेंशन को काफी हद तक कमा दिया है. दे विल हैंडल एवरीथिंग. ओके, बट स्टिल यू नीड टू सुपरवाइज. यू कैन नॉट सिट एंड रिलैक्स कि अभी सब कुछ हो जाएगा. कैन यू? सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच गोज ऑन. सो इट्स अ प्रोसेस रिलेटेड टू व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ it's a process which includes production and exchange. Okay, production and exchange. It's a process which includes production and exchange. Production means manufacturing. By production we mean manufacturing, and by exchange we mean so by production we mean manufacturing and by exchange we mean buying and selling. Okay, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है ये आता है किसमें? This comes under industry. And ये जो buying and selling वाला पार्ट है this comes under
Trade. Okay. Trade. So this comes under industry, this comes under trade. Now इसका मतलब क्या है? बिजनेस में तुम क्या कर सकते हो? तुम या तो बना के बेच सकते हो, यू आर क्रिएटिंग एंड सेलिंग, ओके, और यू आर बाइंग एंड सेलिंग, यू आर सिंपली बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है? या तो तुम बना के बेच सकते हो या फिर खरीद के बेच सकते हो. तो क्या करो, क्या बेचोगे, क्या बना के बेचोगे या क्या खरीद के बेचोगे? The answer is production and exchange of goods or services. By goods we mean physical or tangible goods which can be seen, felt, touched, जिसका कोई physical appearance है उसको बोलते हैं physical goods, okay? और goods हम लोग बोलते हैं. Services means इनविजिबल और इंटेंजिबल, जिसको तुम देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, बट यस फील जरूर कर सकते हो. लाइक टीचिंग, लाइक राइट नाउ आई एम गिविंग यू माय सर्विस. तुम लोग मुझे देख सकते हो बट यू कैन नॉट सी माय टीचिंग, यू कैन ओनली फील माय टीचिंग. अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, यू कैन ओनली फील इट, यू कैन नॉट सी माय टीचिंग, यू कैन सी द टीचर बट नॉट द टीचिंग. अंडरस्टूड? डॉक्टर सर्विस देते हैं, यू कैन सी द डॉक्टर बट नॉट हिज ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट को यू कैन ओनली फील कि उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट किया या बुरा ट्रीटमेंट किया. Okay, so ऐसे बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स है. So in business, you can go for production or exchange. By production we mean manufacturing, which is related to industry, or buying and selling, which is related to trade. And what to produce or what to buy and sell? Goods or services. Goods means physical, जिसका कोई अस्तित्व है, like this chair or all types of furnitures, whatever you can see in the classroom. And services, that is intangible, which cannot be seen but only felt. Okay. But whatever you do, your eye has to be on profit. That means focus. With an eye means focus has to be on profit. Because without profit, your business won't last for a long time. As simple as that. Okay? जैसे जॉब के लिए सैलरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बिजनेस के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है. If you are doing a job and there is no salary, you are not paid salary on time, or you are not paid at all, so will you continue with that job? करोगे continue? करोगे? Why? नहीं करोगे? Obviously you will lose interest, because that's why you join that job to earn money. तो तुम्हें से कंप्यूटर हेल्प करे, मैं थोड़ी ना ज्वाइन करते हो कंपनी का. Did you join that company to help that company or to help yourself? To help yourself, obviously. So if you are not getting paid, तो मैं कितने दिन sustain करियो दाले? Obviously you lose interest and say bye bye. You look for another company, another job. Business भी same. तो जितने भले intention start करो, your intention may be very good to change the society, to serve the country, to help the people out there, to make a difference in people's lives. Everything is good. But जब पैसे का shortage हो जाएगा, या फिर खुद का घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, जब सारे गुड इंटेंशंस भाग जाएंगे. सो अल्टीमेटली यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू अर्न प्रॉफिट, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सस्टेन योर बिजनेस, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अर्न फॉर योरसेल्फ, और यू वोंट बी एबल टू पे योर सैलरीज टू द एम्प्लॉइज. बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा. सो व्हाटएवर यू डू, योर फोकस शुड बी ऑन प्रॉफिट. ठीक है? ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, जोमेटो, स्विगी, ओला, दे आर ऑल ट्राइंग टू बी प्रॉफिटेबल नाउ. बहुत उनका हो गया लॉस में, कस्टमर एक्विजिशन, मार्केट डोमिनेशन, ये सब स्ट्रेटेजी बहुत हो गया. अभी उनका फोकस है कैसे जल्द से जल्द हम प्रॉफिटेबल बने. अन अकेडमी, एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी प्रॉफिटेबल नाउ, बिकॉज एक टाइम के बाद तुम्हें प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. अंडरस्टूड टिल नाउ? ओके. तो ये भी पॉइंट यहाँ पे निकल के आया. एक देखो इंडस्ट्री और एक है ट्रेड. So, जो लोग इंडस्ट्री में हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? They are known as industrialist. So they are also doing business. Like रतन टाटा. अगर रतन टाटा सर को कोई पूछेगा कि सर आप क्या करते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? I am an industrialist. और you can also say I am a businessman. अगर वो बोलते हैं कि I am a businessman, तो बिजनेस में आप क्या करते हैं? I am an industrialist. Business is the main category, industry is the सब कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था लास्ट क्लास, अगर विराट कोहली से कोई पूछता है कि सर व्हाट डू यू डू,
Suppose someone doesn't know Virat Kohli, तो उसका पूछ लिया, is that what you do? तो what will he say? I'm a cricketer. Okay, cricketer हो गया main category. Okay, आप cricketer हैं, तो cricket में आप क्या करते हैं? What will he say? I'm a batsman. Okay, so वही हो गया main category, business, sub category, industrialist. Similarly, someone is doing trade, so buying and selling. उनको भी अगर पूछा जाए तो आप क्या करते हैं? They will also say I'm a businessman. अच्छा, business क्या business है आपका? ट्रेडिंग का, I'm a trader. जो लोग ट्रेड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रेडर. सिंपली बाइंग एंड सेलिंग. देखो, ठीक है, जल्द से I'm a trader. अंडरस्टूड? क्लियर? अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. अप टू दिस जो क्लियर, नो डाउट्स. चलो आगे बढ़ते हैं. Now see, business में we'll discuss a certain formula about business. ठीक है? तो अभी मैंने क्या बोला? बिजनेस का दो डिवीजन में डिस्कस किया. क्या? एक है इंडस्ट्री और एक है ट्रेड. हमने अभी दो डिवीजन डिस्कस किए. ट्रेड. एक और डिवीजन है जो अभी आएगा. एक और डिवीजन है. There are certain activities without which trade is not possible. ट्रेडिंग तुम नहीं कर सकते हो. And even industry activities is also not possible. मतलब कोई भी business activities उसके बिना नहीं हो सकता. Okay, there are certain activities without which any kind of business activity is not possible. ट्रेड तो हो ही नहीं सकता, साथ में साथ इंडस्ट्री भी नहीं हो पाएगा. इंडस्ट्री भी नहीं चलेगा विदाउट दोज एक्टिविटीज. तो क्या है वो एक्टिविटीज? उन एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं एड्स टू ट्रेड. ओके, एड मीन सम काइंड ऑफ हेल्प. बोलते हैं ना फर्स्ट एड. जब कोई इंजरी होता है तो तुम लोग क्या अप्लाई करते हो? फर्स्ट एड मतलब इनिशियल हेल्प. दैट इज नॉट द फाइनल ट्रीटमेंट. वो घाव को इनिशियली सीरियस होने से बचा देता है. कट हो गया, कुछ हो गया, इमीडिएटली तुमने डेटॉल वगैरह कुछ डाल के वहां पे पट्टी वट्टी कर दिया. बाद में अगेन यू गो टू द डॉक्टर टू नो हाउ सीरियस इट इज. द फर्स्ट एड इज नॉट द फाइनल ट्रीटमेंट, इट इज जस्ट द इनिशियल हेल्प. बिकॉज ऑफ इट वो जो घाव है वो ज्यादा सीरियस नहीं होता, इन्फेक्शन ज्यादा फैलता नहीं है. डजंट इट? तुमने वो इनिशियली उसको रोक दिया, फिर बाद में डॉक्टर को दिखा के स्कैन वैन करवा के हाउ सीरियस इट इज, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चलता रहता है. सो द वर्ड एड बेसिकली मीन्स हेल्प. तो यहाँ पे aids to trade means the activities which are helping to carry out the trade. Okay, you can write this line. The activities which are helping to carry out the trade. The activities which are helping to carry out the trade are known as aids to trade. The activities which are helping to carry out the trade are known as aids to trade. So क्या क्या वो activities है? Any idea? बोलो. Tell me any one activity. एक मैं बता रहा हूँ so that तुम लोगों का काम इजी हो जाए. एक तो है एक मेजर. देखो हर एक एक्टिविटी ना, each and every activity solves a problem faced by the businessman. ये जो aids to trade में जो एक्टिविटीज आते हैं, all these activities solves a problem faced by the businessman. तो एक बिजनेसमैन को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? एक मैं बता रहा हूं, बाकी तुम लोगों को गेस करना है. ठीक है? सबसे कॉमन प्रॉब्लम बिजनेसमैन को क्या होता है? फंडिंग, मनी, पैसा. राइट? बिजनेस को रिलेटेड a common problem ना, नहीं कोई सर. Many businessmen they face this problem, funding problem. तो इसको कौन सॉल्व करता है? बैंकिंग. तो ये हो गया बैंकिंग. एड्स टू ट्रेड का एक पार्ट हो गया बैंकिंग, which solves the money problem, which solves the problem of money. और कुछ सोचो और क्या क्या प्रॉब्लम्स बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है. थिंक, अप्लाई योर ब्रेन. कम ऑन, प्रैक्टिकल. थिंक दैट यू आर बिजनेसमैन. अपने आप को भी सब बिजनेसमैन सोचो, बिजनेसमैन और बिजनेसवुमन सोचो अपने आप को. एंड जस्ट इमेजिन कि तुम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू माइट फेस?
बोलो। ट्रांसपोर्टेशन का, गुड्स को इधर से उधर भेजने का। सपोज एक ऑर्डर आ गया, यू आर सिटिंग इन कटक, ऑर्डर इज फ्रॉम बालेश्वर, सामान को बालेश्वर भेजना है या पास में भुवनेश्वर भेजना है, बहुत सारा सामान है, 100-200 कार्टून है, यार 100 और 200 कार्टून कैसे भेजोगे? सिर पे लेके जाओगे, बाहुबली बन के कंधे पे उठा के लेके जाओगे? सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हायर ट्रांसपोर्टेशन लाइक ट्रक्स, मिनी ट्रक्स, बड़े ट्रक या फिर मिनी ट्रक जो होता है टाटा मैजिक या टाटा एस और समथिंग, जो भी होता है, छोटा ट्रक बड़ा ट्रक, कुछ ना कुछ हायर करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये हो गया सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन। और क्या हो सकता है बताओ, और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं बिजनेसमैन के सामने? मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए तो बैंक पैसा चाहिए, पैसे के लिए बैंकिंग आ गया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीजों की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ठीक है। तीसरा है स्टोरिंग, चीजों को स्टोर करना है ना कहीं पे प्रॉपर्ली, सो दैट वो डैमेज ना हो। रॉ मटेरियल्स को प्रॉपर्ली स्टोर करना पड़ता है, फिनिश्ड गुड्स को प्रॉपर्ली स्टोर करना पड़ता है, ताकि जब तक वो मार्केट में बिक नहीं जाता, इट शुड रिमेन फ्रेश, इट शुड रिमेन प्रॉपर, इट शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन, राइट। तो वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? वेयर हाउस और गोडाउन्स। कमर्शियल टर्म्स में इसको हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं, नॉर्मली इसको तुम लोग गोडाउन बोलते हो, बट कमर्शियल टर्म्स में इट इज नोन एज वेयर हाउस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विजिबल है, बोर्ड पूरा दिख रहा है क्लियरली, एवरीथिंग, राइटिंग इज क्लियर, देखिए जरा तो देखा जाओ ना राइटिंग, ओके। सो वेयर हाउस, और क्या हो गया? रिस्क का एक इशू रहता है, रिस्क व्हेन यू आर सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और व्हेन यू आर स्टोरिंग गुड्स इन योर गोडाउन, तो एक रिस्क हमेशा रहता है। क्या रिस्क रहता है? कुछ भी लॉस होने का, लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया, लॉस, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया गोडाउन में, या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई एक्सीडेंट हो गया, सामान डैमेज हो गया, तो ये सब रिस्क हमेशा रहता है, ठीक है। सो दैट रिस्क विल बी कवर्ड बाय व्हाट? उस रिस्क से तुम्हें कौन बचाता है? इंश्योरेंस। तो नेक्स्ट आ गया इंश्योरेंस, ओके। और एक है कस्टमर तक पहुंचने का। दूसरा एक और चैलेंज है, कस्टमर तक पहुंचे कैसे? हाउ कस्टमर विल नो अबाउट अस, हाउ विल वी इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट आवर प्रोडक्ट? एडवर्टाइजिंग के थ्रू यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट और भी है, कांटेक्ट कैसे मेंटेन करें सबके साथ, लाइक कस्टमर के साथ कैसे कांटेक्ट करें, उसका फीडबैक कैसे लें, सामान बेचने के बाद उससे फीडबैक लेना, उसका कंप्लेन सॉल्व करना, फिर सामान बेचने के लिए उसको कांटेक्ट करना, सामान बेचने के बाद उसका फीडबैक लेना, उसका कंप्लेन वगैरह एड्रेस करना, ये सब कैसे होगा? कम्युनिकेशन, थ्रू कम्युनिकेशन टूल्स, ओके। कम्युनिकेशन टूल्स आते हैं आजकल तो बहुत सारा हो गया, व्हाट्सएप से लेके ईमेल से लेके व्हाट्सएप से लेके कितना कुछ है कम्युनिकेशन, ओके। सो ऑल दीज आर नोन एज, कलेक्टिवली नोन एज एड्स टू ट्रेड। इसमें से एक भी हटा दो, एक भी एक्टिविटी हटा दो, क्या लगता है बिजनेस कर पाओगे? विल यू बी एबल टू डू बिजनेस? सब कुछ है लेकिन सपोज बैंकिंग नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? एवरीबॉडी इज नॉट हैविंग सो मच मनी इन हिज बैंक अकाउंट कि सेविंग से पैसा निकाल के बिजनेस करेगा। बहुत लोगों को लोन लेना पड़ता है, तो कहाँ से लाओगे पैसा अगर बैंक नहीं है तो? सब कुछ है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कर पाओगे बिजनेस? लॉकडाउन के टाइम हमने देखा था क्या प्रॉब्लम हुआ। लॉकडाउन टाइम में क्या सब बंद था, तो एंटायर द सप्लाई चेन गॉट डिसरप्टेड। सो एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना वाज अ बिग चैलेंज, ओके, लॉकडाउन टाइम पे। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली अगेन बिजनेस करना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट। देन सब कुछ है बट गोडाउन नहीं है, तो चीजों को स्टोर कहाँ करोगे? प्रॉपर्ली सेफ कैसे रखोगे उसको? सब कुछ है लेकिन इंश्योरेंस नहीं है, तो बहुत बड़ा रिस्क है। इफ समथिंग हैपेंस टू योर गुड्स बाय एक्सीडेंट, then you will have to bear the entire loss। पूरा का पूरा लॉस किसका हो गया? तुम्हारा हो गया, बहुत बड़ा नुकसान है, बिजनेस बंद भी हो सकता है। Then advertising, as I said, अगर लोग जानेंगे नहीं तो why will they buy? If people don't know about your product, why will they buy? You can have a very good product, your product may be of very high quality, but ultimately people should know about the product, isn't it?
अगर लोगों को तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है तो फायदा क्या हो? Why will they buy? And next, communication. You have to maintain contact with the customer before selling, after selling, both. So all these problems are solved by Aids to Trade. तो ये भी एक बिजनेस का पार्ट है, और ये भी बिजनेस ही है ना। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चला रहा है, सपोज तुम लोगों में से कोई एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चला रहा है और उसको हम लोग पूछेंगे भाई तुम क्या करते हो, वो क्या बोलेगा? बिजनेस। अच्छा, बिजनेस करते हो, कौन सा बिजनेस है तुम्हारा? ट्रांसपोर्टेशन का। तो अगर पूछेगा भाई तुम ट्रांसपोर्टेशन में हो तो ये किस में आता है? ये ट्रेड में आता है कि इंडस्ट्री में आता है? तो क्या बोलेगा? ना ये ट्रेड में आता है ना इंडस्ट्री में आता है, ये एड्स टू ट्रेड में आता है। हम लोग उस सेक्टर में है जो बाकी सेक्टरों को हेल्प करता है, हमारे बिना बाकी सेक्टर काम नहीं कर पाएंगे। If we are not there, then other sectors won't be able to operate. They won't be able to do business. Understood? So ये सेक्टर बाकी दो सेक्टर के लिए लाइफलाइन की तरह काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये दोनों भी, इट्स लाइक जो चेयर होता है, चेयर के जो 4 लेग्स होते हैं उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट लेग है, इसके बिना वो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दे आर द मेन सपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अंडरस्टूड? एंड अभी एक फॉर्मूला देखते हैं। ट्रेड प्लस aids to trade, together they are known as commerce. Together they are known as commerce. जो ओडिया में कौन? वाणिज्य। वाणिज्य जो वर्ड का, not commerce stream, general commerce term. The commerce includes trade as well as aids to trade. So trade plus aids to trade is equal to commerce. ठीक है जी? So what is business? Industry plus trade plus aids to trade is equal to business. So industry plus trade plus aids to trade is equal to business. Understood? तो इसका एक और फॉर्मूला भी हो सकता है। क्या हो सकता है बता सकते हो? और एक और फॉर्मूला हो सकता है बिजनेस का। बिजनेस का एक ये फॉर्मूला है, इंडस्ट्री प्लस ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है? यस, एग्जैक्टली। वी कैन आल्सो से इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स ओके, एक ही बात है, because trade plus aids to trade is equal to what? Commerce. So either you can say industry plus trade plus aids to trade is equal to business, or you can say industry plus commerce is equal to business. तो समझ में आ गया? Business is a combination of trade as well as industry as well as aids to trade. So if you are in the industry, in any industry, बहुत सारी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री है। इफ यू आर इन एनी इंडस्ट्री, यू आर डूइंग व्हाट? यू आर डूइंग बिजनेस। एंड तुम हो क्या? यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके? इफ यू आर जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, यू आर डूइंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। चीजों को 10 रुपए में खरीदते हो, 15 रुपए में बेच देते हो, बीच में 5 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो। सो यू आर इन ट्रेडिंग, यू आर अ ट्रेडर, यू आर अ बिजनेसमैन बट ट्रेडर। ओके? And if you are in this type of businesses which helps other businesses, then you are in aids to trade category. And what you are doing? You are doing business, but at the same time you are helping other businesses, okay, to run their operations successfully. Without these activities, other businesses won't be able to operate their operations successfully. Understood? That's why we can say trade plus aids to trade is equal to commerce. So industry plus trade plus aids to trade is equal to business, or industry plus commerce is equal to business, because commerce is a combination of trade plus aids to trade. तो डिटेल में अगर देखें तो ये है फॉर्मूला, अगर उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दें तो ये बन जाता है फॉर्मूला। क्लियर टिल नाउ और एनी डाउट्स? ओके, लिख लिया रिटर्न? ओके,
नेक्स्ट वन, सो थोड़ा बिजनेस पे फोकस करते हैं अभी। सो लास्ट क्लास जो मैंने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट नाउ। कुछ नए बच्चे भी आए हैं, ज्वाइन किए, सो दे नीड टू नो दिस कॉन्सेप्ट। देखो, बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट कोटा। अल्टीमेटली व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन activity. Okay, business is an activity. Okay, now what is an activity? Anything that we do in our day-to-day lives is known as your activity. अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई भी एक तरह का activity है. So anything that we do in our day-to-day lives, that is known as your activity. अभी activity दो तरह का होता है, एक जो तुम पैसे कमाने के लिए करते हो, दो जो तुम करते हो खुद के शांति के लिए, खुद के satisfaction के लिए, खुद के happiness के लिए. Okay, so those activities which are done to earn money, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरह का होता है? इसमें क्या क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट, दैट इज जॉब। इफ यू आर डूइंग अ जॉब देन यू आर डूइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ऑब्वियसली जॉब करने का रीजन क्या होता है? टू अर्न मनी। कोई फ्री में तो जॉब करेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कुछ बेसिक डिफरेंस है। क्या है वो? एम्प्लॉयमेंट कैन बी डन बाय एनीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड। Well, if you want to go for a job, there is no specific degree required to do a job. Anybody can do a job. Okay, अगर कोई स्कूल पास भी नहीं किया, he can also do a job. और कोई highly qualified है, he can also do a job. तो जॉब का कोई बेसिक क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। Obviously, the salary will vary, the job profile will vary. कोई हाईली क्वालिफाइड है, उसका जो प्रोफाइल होगा विल बी मच हायर एज कंपेयर टू समवन हु हैज नॉट इवन कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग। तो जॉब प्रोफाइल वेरी करेगा, सैलरी ऑब्वियसली वेरी करेगा, बट जॉब कर सकते हैं लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिफिकेशन, दे विल गेट अ जॉब। अंडरस्टूड? बट प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। प्रोफेशन में आने के लिए यू नीड टू हैव अ डिग्री। विदाउट अ डिग्री यू कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशन में क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, lawyers, CAs, CMAs, okay, CS, company secretary, CMA, cost manager, accountants, okay. So इन सबको बोलते हैं professionals. Without a degree, without an MBBS degree, can you be called a doctor? तुम्हारा मेडिसिन नॉलेज हो सकता है कमाल का हो। सपोज तुम कोई मेडिसिन शॉप के ओनर हो, बहुत सालों से मेडिसिन के बिजनेस में हो, या फिर तुमने फार्मेसी भी किया है, सो यू नो लॉट अबाउट मेडिसिन्स। मेडिसिन्स का बहुत ही ज़बरदस्त ज्ञान है तुम्हें। तुम लोगों का जो भी कुछ बीमारी है, सिम्टम्स वगैरह सुन के काफ़ी हद तक कुछ बीमारियां तुम मेडिसिन देके ठीक भी कर देते हो। बट स्टिल कैन यू बी कॉल्ड अ डॉक्टर नो मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव? लोग ऐसे रेस्पेक्टफुली तुम्हें डॉक्टर बुलाए तो अलग बात है, बट टेक्निकली कैन यू बी कॉल्ड अ डॉक्टर? नो। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव एन MBBS डिग्री। सिमिलरली तुम्हारा लॉ का नॉलेज जितना भी जबरदस्त हो, स्टिल यू कैन नॉट बी कॉल्ड अ लॉयर टिल यू हैव अ LLB डिग्री। जब तक LLB डिग्री नहीं होता, टिल यू हैव एन LLB डिग्री यू आर नॉट अ लॉयर। अंडरस्टूड? So here the profession. Without a certain degree, you cannot be called a professional. Understood? Clear? तीसरा आता है business. तीसरा आता है business. हमारे कहानी का हीरो business. Business करने के लिए कोई qualification चाहिए? Do you need any qualification, minimum qualification or any degree? Yes or no? No. All of you agree? Raise your hand. Do you think any particular qualification or degree is required to do a business? If you say yes, then yes, it is required, then raise your hand. If you think no, then keep your hands down. So all of you think it's no, not required. Yes.
बिजनेस करने के लिए नथिंग इज रिक्वायर्ड, कोई डिग्री कुछ नहीं चाहिए. यस, कैपिटल चाहिए, ज़्यादा हो कम हो, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग. यू नीड कैपिटल, बट यस ऑब्वियसली यू नीड एन आइडिया, वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब चीज़ चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग एल्स यू रिक्वायर टू डू अ बिजनेस. अंडरस्टूड? तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीनों में हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट में यू आर वर्किंग अंडर समवन. एम्प्लॉयमेंट में यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर वर्किंग अंडर समवन. बट प्रोफेशन में यू आर इंडिपेंडेंट. ओके, लाइक एक डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है, तो ऑब्वियसली ही इज एन इंडिपेंडेंट गाय, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे. ठीक है, बिजनेस में भी यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट वर्किंग अंडर एनीबॉडी, यू आर द बॉस. प्रोफेशंस, इन लोगों का, ये लोग क्या चार्ज करते हैं? फीस. दे चार्ज यू फीस. लॉयर के पास जाओगे कंसल्टेशन के लिए, व्हाट यू विल चार्ज? फीस. डॉक्टर के पास जाओगे कंसल्टेशन के लिए, व्हाट यू विल चार्ज? फीस. सीए के पास जाओगे, फीस. ओके, बट एम्प्लॉइज, दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, दे चार्ज सैलरी फॉर देयर सर्विस. वो लोग क्या लेते हैं? सैलरी. बिजनेस का क्या है रिवॉर्ड? बिजनेसमैन का प्रॉफिट. ओके, एंड सबसे ज्यादा रिस्क किसका रहता है तीनों में? बिजनेस का. उसके बाद प्रोफेशन का. देन एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम रिस्क है. रिस्क उसमें भी है, बट सबसे कम रिस्क एम्प्लॉयमेंट में. सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होता है? बिजनेसमैन. इसलिए बिजनेसमैन बनने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ करेज. इतना इजी नहीं है बिजनेसमैन बनना. ठीक है, नर्व्स ऑफ स्टील जो बोलते हैं ना, वो होना चाहिए. मतलब खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए, एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए. स्ट्रेस मैनेजमेंट पता होना चाहिए. गालियां खाने की आदत होनी चाहिए. क्रिटिसिज्म झेलने की आदत होनी चाहिए, बिकॉज यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, यू विल फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगर क्रिटिसिज्म से इजीली अफेक्ट हो जाते हो, कोई किसी ने कुछ बोल दिया एंड यू आर अपसेट फॉर द होल डे, देन बिजनेस इज नॉट फॉर यू. बिजनेस कर रहे हो मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, यू हैव टू टॉलरेट दैट. बहुत कुछ है, मेंटल स्ट्रेंथ से लेके एवरीथिंग यू नीड. ओके, या सो दीस थिंग्स आर, दिस इज डिफरेंस. नॉट लाइक अर्जेंट कॉल चाहिए तो फोन रखें बाहर बोल. हाँ, मेसेज फोन कौन करते? अच्छा ठीक, कॉल करतील अर्जंट बरोबर. तर ठीक आहे, अर्जंट कॉल जोडे नियो नाही डिस्टर्ब हो क्लास. ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन है, बिजनेस. सो अंडरस्टूड द डिफरेंस तीनों में. एम्प्लॉयमेंट वी आर चार्जिंग सैलरी, एवरीथिंग इज देयर इन द बुक. आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो मैं इसको बार बार डिक्टेट करके टाइम ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा. मैं चाह रहा हूँ तुम लोग समझ लो. लेट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. ओके, ये सेम पॉइंट में बुक में मिल जाएगा. एक बार रेडी मारोगे तो बाद में तो नोट्स आई विल प्रोवाइड, बट अभी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. क्लियर अबाउट इट? ओके, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किस में रहता है? बिजनेस में. इज देयर एन इन्वेस्टमेंट इन प्रोफेशन? प्रोफेशन में कोई इन्वेस्टमेंट रहता है? यस. તમે ନିଜର ऑफिस सेटअप करिवो, क्लिनिक सेटअप करिवो, लॉयर्स चेंबर सेटअप करिवो, पैसा लगिवो ऑब्वियसली. सो यस, इन्वेस्टमेंट रहता है प्रोफेशन में. एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट रहता है? नो. ओके, તમે એલી ઘૂસ દેચો ચાકરી પાયા पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. જેটা આજકાલ ચાલची सुन देवो इन वेस्ट बंगाल एंड सम अदर स्टेट्स. ओके, जॉब पाया पे घूस देगी, जॉब पहुंचते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो बट वो तुम्हारा तुमने दे दिया, तुमने दिया वो गलत रास्ते से दिया, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी. एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, जॉब पाने के लिए तुम्हें थोड़ा वो क्वालिफिकेशन तो कहीं कहीं मेंशन होता है कि इतना क्वालिफिकेशन. ठीक है, जहाँ पे जितना चाहिए. कहीं कहीं यू कैन सिंपली गो विदाउट एनी डिग्री एज वेल. कोई जॉब्स में कोई डिग्री नहीं चाहिए होता है, कहीं कहीं डिग्री चाहिए होता है. एंड दूसरा है कि तुमको काम आना चाहिए. जिस काम के लिए यू आर अप्लाइंग, उस काम के लिए जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, यू शुड हैव दोस स्किल्स. बस इतना ही. इफ यू हैव द स्किल्स यू विल गेट द जॉब, सिंपली. ठीक है. अब एक डॉक्टर इफ इज वर्किंग अंडर अ हॉस्पिटल, अगर वो किसी हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है तो क्या बन जाएगा? एम्प्लॉयड. सेम डॉक्टर जब अपने क्लिनिक में आ जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? प्रोफेशनल. ठीक है. सो व्हेन ही इज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल ही बिकम्स एन एम्प्लॉय, बिकॉज वहाँ पे वो उस हॉस्पिटल के अंडर है, हॉस्पिटल के अंडर में काम कर रहे हैं, एंड इज गेटिंग पेड, इज गेटिंग ए सैलरी. बट अपने क्लिनिक में इज इंडिपेंडेंट. अगर उन्होंने खुद अपना हॉस्पिटल खोल दिया है तो बिकम्स अ बिजनेसमैन. ओके, अंडरस्टूड? हियर नेक्स्ट. So economic activities are those activities which are done with an economic motive, to earn something. Economic motive means to earn something.
नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ये क्या होगा बोलो? ये क्या होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? These are the activities which are performed out of moral obligations, social or moral obligations, or for self-satisfaction. Write down the definition. These are the activities which are performed for social or these are the activities which are performed out of social or moral obligations or for self-satisfaction. Those who have written, no need to write again. Those who have not written, please write down. These are the activities which are performed out of social or moral obligations or for self-satisfaction. लिखित होता ठीक है लिखित होता उत्तर लिखित दरकार है जे नॉन लिखित होता किसी माने लिखो so non economic activities are those activities जेला तुम्हें करो जो खुशी में और as a responsibility तुम्हें करो so suppose you are doing a charity okay कालिया में जाए तो सुकेशर को मोरा में जाए तो हमें एंजॉय पार्ट होती सुकेशर में स्टेटस देखियो लिखित हो so देखिए जो समझते हैं चल हम जाए तो गोटे जो बाकी रे दीटा ब्लॉक रे हमें फ्लड रिलीफ जो अफेक्टेड एरियाज अछि सिटी डिस्ट्रीब्यूट करे पे जाए तो रिलीफ लोग पर बहुत प्रॉब्लम रो अछन सिटी ठीक है पानी तो कमी है बट स्टिल माने ताकर एक मतलब अर्निंग स्टार्ट हेनी ठीक है फसल बर्बाद हेई छी माने रोजगार को नहीं ताकर बहुत समस्या होची सो वगैरह फूड वगैरह पे ताकर बहुत इश्यूज होची सो आमे सिटी है कि जितना पारबे हमें हेल्प करके आसछु जितना फैमिलीज को पॉसिबल सो काई कोलो एटा बिजनेस पर्पस व्हाट डू यू थिंक ताकर पैसा नहीं आसछु एक दल ये तुमको हम बैग दलु ठीक है तुम खेत रा किछटा पोर्शन हम नारे कर दियो हमते कहल तुमको ये लो 2 बैग एंड 200 स्क्वायर फीट जमीन हमारा नाम कर दो तभी हम लोग तुम्हें बैग देंगे वरना नहीं देंगे नो सो व्हाई डिड वी डू इट क्यों क्या हमने वी डिड नॉट गेट एनीथिंग उल्टा हाथ से पैसा खर्चा करके गए वी डिड नॉट गेट एनीथिंग उल्टा पैसा हाथ से गया उल्टा वी स्पेंड मनी फ्रॉम आवर ओन पॉकेट एंड वेंट देयर व्हाई for self satisfaction or as a duty we can say moral obligation social obligation मतलब क्या something which is your duty this is your duty as a human being society में ये rule है मतलब ये rule मतलब कोई लिखित rule नहीं है but एक humanity rule होता है कि अगर तुम कमा रहे हो पैसा अगर नहीं भी कमा रहे हो अगर तुम किसी को हेल्प कर सकते हो तो try to help even if you can help one person पैसा कमाओ या ना कमाओ अगर पैसा नहीं कमा रहे हो बट तुम्हारे पास पैसा है पॉकेट मनी के थ्रू यू हैव सरप्लस मनी एंड विद दैट मनी इवन इफ यू कैन हेल्प वन पर्सन देन हेल्प सोसाइटी में एटलीस्ट ट्राई टू हेल्प वन पर्सन जितना भी हो सके और हेल्प के लिए हमेशा ऐसा नहीं कि तुम्हें हजारों लाखों खर्च करने पड़ेंगे इवन 10 रुपया देके भी तुम किसी को हेल्प कर सकते हो समवन इज नॉट एबल टू बाय फूड तुमने उसको 10-20 रुपए दे दिए और उसको एक ब्रेकफास्ट या फिर एक टाइम का कुछ खाना दे दिया दैट इज आल्सो काइंड ऑफ हेल्प सो इफ यू आर एबल टू हेल्प समवन इवन वन पर्सन विद whatever resources you have, then you should do it. That's how society runs. सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कैसे मैं ठीक रहूँगा दूसरे लोग जो मर जाए मरने दो मेरे को क्या मैं ठीक रहना चाहूँगा ऐसे सोसाइटी नहीं चलता ठीक है अपने बारे में सोचो ऑब्वियसली थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली उसके बाद थिंक कि अगर तुम किसी के लिए कुछ कर सकते हो देन डू इट बैक आउट मत करो ओके सो इसी बेसिस पे हमने ये काम किया और पहले भी कर चुके हैं करना भी चाहिए स्टूडेंट्स को भी मैं एनकरेज करता हूँ कि यू शुड डू इट दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दिस इज नॉट योर बिजनेस ये इकोनॉमिक में नहीं आता ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है सो वी आर डूइंग इट एज अ रिस्पांसिबिलिटी सेम टाइम वी फील सेटिस्फैक्शन एज वेल से मजा तो आता है काम करने में अलग ही खुशी होता है व्हेन यू हेल्प समवन यू गेट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस जिन्होंने हेल्प किया उनको पता होगा इफ यू हैव एवर हेल्प्ड एनीवन यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस अलग ही खुशी मिलती है उससे व्हेन समवन सेज दैट इसने मुझे हेल्प किया इसने मुझे बहुत ये I have gratitude towards this person. It's a different kind of feeling. So it's a non-economic activity. So this does not come under business. Business is always economic activity. तो इसमें क्या आता है? Charity आता है non-economic activity में. Helping your friend, helping your parents, or any activity that you're doing for self-satisfaction like playing sports or anything time pass के लिए, helping your parents, all these things. Yeah. तो इस पे ज़्यादा focus नहीं है अपना. हमारा main focus इसी में. ठीक है? बस ये जानना चाहिए कि डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में ठीक है नेक्स्ट
अभी हम लोग थोड़ा सा बिजनेस में फिर से देखें, वो जो हमने फॉर्मूला देखा था, इंडस्ट्री प्लस ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड। ओके, तो थोड़ा सा इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेड का थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं, देन एड टू ट्रेड का। ओके, सो ट्रेड में क्या होता है? तो बेसिकली देखो, ट्रेड में पहला है, देखो अगर हम लोग जस्ट अ मिनट ओवरऑल क्लासिफाई करें तो ट्रेड इज ऑफ 4 टाइप्स। होम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, retail trade. So these are the 4 types of trade. होम ट्रेड क्या होता है? होम ट्रेड में 4 चीज आता है। देखो होम ट्रेड में क्या क्या पहुंच जाता है? फर्स्ट आता है लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड मतलब द ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन अ सिटी। यू आर डूइंग ट्रेड ओनली विद इन कटक, ठीक है? कटक में खरीद रहे हो, कटक में बेच रहे हो, ओनली कटक, कटक के बाहर नहीं जा रहे हो, तो तुम कौन सा ट्रेड कर रहे हो? यू आर डूइंग लोकल ट्रेड। मतलब होम ट्रेड में लोकल ट्रेड यू आर डूइंग। Home trade means the trade which takes place within the geographical boundaries of a country. लिख सकते हो, the trade which takes place within the geographical limits of a country. Home trade means the trade which takes place within the geographical limits of a country. Within the geographical limits of a country. In short, आसान भाषा में अगर बोले तो जो हमारे देश के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसको बोलते हैं होम ट्रेड, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले आता है लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड मींस जो एक सिटी के अंदर ही हो रहा है, इट इज टेकिंग प्लेस विद इन अ सिटी ओनली, सिटी के बाहर नहीं जा रहा है। सपोज यू आर डूइंग ट्रेड विद इन द कटक, विद इन कटक ओनली, दिस इज होम ट्रेड, दिस इज लोकल ट्रेड। देन आता है स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड मतलब जो थ्रू आउट द स्टेट हो रहा है। Suppose from Cuttack you are selling goods to Bhubaneswar, to Baleswar, to Berhampur, to Balangir, different areas में you are sending goods, you are selling goods, ठीक है? Clear? So this is a state trade. तुम whole ओडिशा में ट्रेड कर रहे हो, पर ओडिशा के बाहर नहीं, ओडिशा के अंदर तुम ट्रेड कर रहे हो। different cities में तुम सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, then you are doing what? State trade. Third level क्या होगा? इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ओडिशा में रह के यू आर सेलिंग गुड्स टू बंगाल, यू आर सेलिंग गुड्स टू दिल्ली, या दिल्ली से खरीद के यू आर सेलिंग टू यूपी, ओके, या दिल्ली से खरीद के यू आर सेलिंग गुड्स टू वेस्ट बंगाल। सो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या ओडिशा से खरीद के दिल्ली में बेच रहे हो, तो मल्टीपल